آغاز اہم خبر سے، آئی ایم ایف سے 9 ماہ میں $3 ارب ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال، کہا آئی ایم ایف 1.1 ارب کی پہلی قسط اسی ماہ جاری کرے گا۔ چین نے تقریباً $5 ارب کے قرض رول اوور کیے ہیں۔ سعودی عرب کی $2 ارب کی یقین دہانی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کلیدی کردار ہے۔ یو اے ای کے صدر نے $1 ارب دیے۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی $1 ارب کا اعلان کیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تو $3 ارب ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے، اور پہلی قسط جولائی میں $1.1 بلین کی ہوگی۔ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے یہ تقریباً $5 بلین۔ ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب کا ہم سے کمٹ کیا۔ یو اے ای کے صدر نے، میرے محترم بھائی، جب میں دورے پہ گیا تھا تو انہوں نے مہربانی کی $1 بلین جو گیپ تھا 2 بلین کا، اس میں اسلامی ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کی رقم فی الفور ادا کر دی۔ جب میں پیرس میں تھا انہوں نے اعلان کر دیا، سوری ادا نہیں، اس کا کمٹ کر لیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس میں 2358 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 100 انڈیکس کئی نفسیاتی حدیں عبور کرتا ہوا 39,825 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کاروباری ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے مثبت اثرات روپے کی قدر کو استحکام ملے گا، جس سے قومی معیشت میں بہتری آئے گی۔ آئی ایم ایف معاہدے کے پاکستانی معیشت پر مثبت اثرات، اسٹاک ایکسچینج سے اچھی خبریں آنے لگیں۔ حصص بازار 2231 پوائنٹس یعنی 5.38% کے تاریخی اضافے کے ساتھ کھلا۔ انڈیکس میں 5% یا اس سے زائد اضافے پر حصص کی قیمتوں میں یکدم اضافے کو روکنے کے لیے حفاظتی میکینزم فعال ہو گیا، جس کے بعد مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں 1 گھنٹے معطل رہیں۔ کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے پر بھی مثبت رجحان برقرار رہا۔ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب جو دوست ممالک سے بھی جو ہمیں فائنانس ملے گا، جس سے ڈالر کا جو انفلو ہے وہ بھی بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ جو ڈالر کے جو ریٹس ہیں پاکستانی مارکیٹ میں وہ بھی نیچے آ جائیں گے۔ جو تیزی کا سلسلہ ہے جو اب انشاءاللہ لگتا ہے کہ اب یہ چلتا رہے گا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلنے اور آئی ایم ایف معاہدے نے روپے کی قدر میں بھی اضافہ کر دیا۔ چیئرمین ایکسچینج ایسوسی ایشن ملک بوستان کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے کے بعد روپے کی قدر میں استحکام کے باعث ڈالر بیچنے کا رجحان بڑھ گیا۔ ایکسچینج کمپنیوں کے پاس ڈالر خریدنے کے لیے سرمایہ ختم ہو گیا، جس کے باعث ایکسچینج کمپنیوں کے کاؤنٹرز بند کر دیے گئے۔ محدود لین دین کے دوران $5 کمی کے بعد ڈالر $280 پر خریدا، جبکہ $285 میں فروخت کیا گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ کھلنے پر ڈالر کی قدر میں مزید کمی متوقع ہے۔ کاشف حسین، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 29.4% پر ہے۔ مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 38% پر تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ 1 بجے تک 100 انڈیکس میں 2334 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 270 اور 272 پر آ گئی۔ اسحاق ڈار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ حکومت نے اپنے ایم این ایز کے لیے 90 ارب مختص کیے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کا وفاقی حکومت پر طنز، کہتے ہیں اسی حکومت نے ملک کی سب سے بڑی عدالت کو بتایا اس کے پاس عام انتخابات کے لیے 20 ارب نہیں ہیں۔ حماد اظہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد روپے کی قدر میں اضافہ، لوگ دھڑا دھڑ ڈالر بیچنے لگے۔ ڈالر پہ منتقل کیا گیا سرمایہ واپس آنا شروع۔ اوپن مارکیٹ میں $5 کمی کے بعد ڈالر $280 تک پہنچ گیا۔ چیئرمین ایکسچینج ایسوسی ایشن ملک بوستان کہتے ہیں کہ ایکسچینج کمپنیز کے پاس ڈالرز خریدنے کے لیے سرمایہ ختم ہو گیا، ڈالر خریدنے والے کاؤنٹرز بند کرنا پڑے۔ انٹر بینک مارکیٹ کھلنے پر کل ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہوگی۔ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد روپے کی قدر میں اضافہ ہونے لگا اور قومی معیشت کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو
एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को तलब। पाकिस्तान के साथ तय पाने वाले स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुआहदे और प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्जे की पहली किस्त के इजरा की मंजूरी भी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को तलब। पाकिस्तान के साथ तय पाने वाले स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुआहदे और प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए कर्जे की पहली किस्त के इजरा की मंजूरी भी देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन वाक़े की शदीद मज़म्मत। काबीना इजलास में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मत मुसलमान और पाकिस्तानी कौम कुरान पाक की बेहुरमती की पुरजोर मज़म्मत करती है। स्वीडन वाक़े के मुजरिमों के खिलाफ फिल फौर कार्रवाई की जाए। उम्मीद है आइंदा ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। स्वीडन में एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया उसकी शिद्दत से उसकी मज़म्मत करती है। OIC ने इस बारे में हंगामी इजलास बुलाया और उस इजलास में इस कभी हरकत की भरपूर मज़म्मत की गई और मुतालबा किया गया कि न सिर्फ मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत मुतालबा करती है स्वीडन की हुकूमत से कि वो इन वाक़यात का भरपूर नोटिस ले। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। सऊदी अरब ने कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन के सफ़ीर को तलब कर लिया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत पर आलमे इस्लाम सरापा एहतजाज। इराक में फुटबॉल लीग में अल शुरता और अल कासिम के दरमियान मैच में दोनों टीमों ने अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दोनों टीमों के खिलाड़ी और रेफरीज मैच के आगाज में हाथों में कुरान मजीद के नुस्खों के साथ शरीक हुए और बोसा देते हुए दिखाई दिए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराक और ईरान में स्वीडिश सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे किए गए। तुर्की, अमारात, उर्दन और मराकश समेत दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी एहतजाज किया जा रहा है। जद्दा में हंगामी इजलास के दौरान OIC ने कहा कुरान मजीद की बेहुरमती के बार बार होने वाले वाक़यात के खिलाफ ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। इससे पहले OIC ने अपने एलामिये में कहा था कि ऐसे वाक़यात बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि जापान के साथ सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। टोक्यो में जापानी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर जापान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान निजी शोबे के अफराद से भी बातचीत करूंगा। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पहली बार जापान का दौरा कर रहे हैं। ईद तातिलात खत्म होते ही पंजाब में गंदम की तलब और कीमत में बड़ा इजाफा। लाहौर में गंदम की कीमत 150 रुपए इजाफे के बाद 4650 रुपए फी मन हो गए। इस्लामाबाद में गंदम की कीमत 175 रुपए इजाफे के बाद 4800 रुपए फी मन हो गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आसिफ से। जी रिजवान, बताइएगा क्या कीमतें हुई हैं, कितना इजाफा हुआ? जी इफ्जा, ईद तातिलात खत्म होते ही पहले कारोबारी दिन के आगाज के मौके पर पंजाब गंदम मार्केट जो है वो बुलंद हो गई है। इस हवाले से लाहौर में गंदम की कीमत 150 रुपए इजाफे के बाद 4650 रुपए फी मन होगी, जबकि इस्लामाबाद में गंदम की कीमत में 175 रुपए से लेकर 200 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद वहाँ कीमत 4800 रुपए फी मन है। रीमिया खान जहाँ के गंदम जिसे घर कहा जाता है, वहाँ पर गंदम की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है और वहाँ आज की कीमत जो है 4600 रुपए है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफे की वजह यह है कि जखीरा अंदोजों ने गंदम जो है वो उसको महदूद मकदार में सप्लाई करना शुरू किया हुआ है। फ्लोर मिल्स की जितनी तलब है उसके मुताबिक गंदम सप्लाई नहीं की जा रही है। इस तरह मसनूई किल्लत पैदा करके गंदम की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आज पंजाब की 55% फ्लोर मिल्स बंद है और तमाम फ्लोर मिल्स जो है वो कल खुलने वाली हैं 100% जो है। अगर आज ये सूरत हाल है तो कल पंजाब की मार्केट में गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे शोहदा पाक सरजमीन को सलाम। लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह नजर ऑफिसर थे जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। उन्होंने अपनी जवानी वतन अजीज पर कुर्बान कर दी और आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह बन गए।
मजीद खालिद महमूद से। लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह ने 8 मई 2023 को दहशत गर्दों के खिलाफ जवां मर्दी और दलेरी से दिफा वतन में जाम शहादत नोश किया। इनका तहल्लुक जिला कोलू बलोचिस्तान से था। हमारे बेटे को पाक आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा शौक़ था, जुनून की हद तक, और वो बड़ी मेहनत से अपने इन तमाम कोर्सेज़ के लिए जो भी पाक आर्मी ने और जो असाइनमेंट दिए उसने फ़ख्र के साथ उसे कबूल किया और अपने तमाम जितने भी उनके सीनियर लोग जो उनके सुपीरियर थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन सबको मुतमईन किया। उसकी वजह से हम सब बलूचिस्तान वालों का जो फ़ख्र से सर उसने बुलंद किया है, हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। शहीद के वालिद ने कहा, नूरुल्लाह का दोस्त जब उम्रे पर गया था उससे भी नूरुल्लाह ने कहा मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जाम शहादत नोश करूं, और अल्लाह ने दुआ कबूल की। मेरा तमाम जवानों के लिए पैगाम है कि पाक आर्मी ज्वाइन करें, हमारी पहचान ये पाक वतन है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली के बहरान संगीन, लोड शेडिंग बढ़ गई। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट जबकि तलब 27,000 मेगावाट तक पहुंच गई। शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात से मुल्क में दाखिल होगा। नए सिस्टम के तहत अगले 5 रोज तक बारिशों का इम्कान है। PTMA के मुताबिक आज रात से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और चहलम में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मियांवाली, सरगोधा, सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात में भी बारिश मुतवक्के है। फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, शेखुपुरा और झंग में बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, बहावलपुर और बहावल नगर में भी बारिश होगी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। मरी में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं, जबकि रावलपिंडी मरी GT रोड पर बारिश और आंधी के बायस गाड़ी पर दरख्त गिरने से 3 सयाह शदीद जख्मी हो गए। दरख्त गिरने के बायस मरी GT रोड ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद है। सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मरी गलियात रोड पर दरिया गली करकनारा के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। कराची में इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में अलाइशों से लाइनें ब्लॉक हो चुकी हैं। गटर उबल पड़े, राहगीरों को गुजरना मुहाल हो गया। मज़ीद आयशा खान से। कुर्बानी के जानवर की बाकियात, खून आलूद कीचड़ और गलाजत के ढेर, ये मनाज़िर है यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात की मरकजी सड़क के। शहरियों की जानिब से फेंकी गई आलाइशों ने सेवरेज का निजाम धरम बरम कर रखा है। तातीलात के बाद शहरियों का पहला दिन कीचड़, ताफुन और गंदगी के ढेरों से गुजर कर शुरू हुआ। 3 महीने होने वाले। वैसे तो नाजिम साहब बोल रहे थे आपको काम होता हुआ नजर आएगा। ये क्या, ये जौहर नहीं है, ये मेन दिल है कराची का। 3 हट्टी के करीब निश्ता रोड पर गटर उबलने से गंदगी के ढेरों ने सांस लेना मुहाल कर रखा है। पूरे इलाके में ताफुन फैला हुआ है। शिकायत के बावजूद सफाई का कोई इंतजाम नहीं। असल में मेन मसला ये है कि मेन लाइन बंद पड़ी हुई आगे से। इसके अलावा आगे गटर नहीं मिले क्योंकि ऊपर से कारपेटिंग हुई है, रोड बना हुआ है। हर घर में सीवरेज का पानी जमा है। बताएं, ये ईद का था दिन थे और किस तरीके से लोगों ने बर्दाश्त किया है। दूसरी तरफ सफाई ऑपरेशन मुकम्मल होने के बावजूद गुलशन इकबाल, हुसैनाबाद, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके आलाइशों से भरे पड़े हैं। अगर सड़कों पर जमा ताफुन ज़दा पानी साफ ना किया गया तो इनसे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।